हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज हम यहाँ इंग्लिश के क्लास 10th के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 1 लेकर आए हैं। इसी तरह से पेपर हमें 2022 के एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, तो इसे आप अच्छी तरह से पढ़िए और तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम की। तो हम शुरू करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए, read the following passage carefully and answer the question given below it. There are some benefits of switching over the solar energy. First of all, using solar energy is good for our environment. Solar panels do not emit harmful greenhouse gases that cause global warming. Solar panels require very little maintenance because they are not no moving parts. They are also not that hard to install. They also do not lose much efficiency over the year. The Indian government and many states offer tax benefits and other incentives to people who decide to install solar panels. Solar energy system can be used in remote areas even if a diesel generator is the technology of choice. Solar energy is a better option as it helps us to reduce our electricity bills. अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्विचिंग ओवर द टू सोलार एनर्जी। इसका आंसर हमें इसी पैसेज में से मिलेगा। The benefit of switching over to solar energy is that it is good for our environment. Second question is, solar panel emit harmful greenhouse gases. Is it true or false? हमें इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है और इसका आंसर है it is false. Third question is, solar panel do not lose much dash over the years. Efficiency. इसका भी आंसर हमें इसी से मिल जाएगा। D, solar panels required very little maintenance as option A, they have small parts. Option B, they are not large. Option C, they are no moving parts. And option 4 यानी D, they can be installed in open spaces. इसका सही आंसर है थर्ड, they are no moving parts. क्वेश्चन नंबर E, गिव द नाउन फ्रॉम द वर्ड डिसाइड। डिसाइड का नाउन है डिसीजन। सेकेंड पैराग्राफ, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द नेशनल एम्बल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द सिंबल ऑफ पीस एंड गुडविल टू द वर्ल्ड. इट वॉज द रॉयल इंसिग्निया ऑफ द एम्पायर अशोका. It was taken from the pillar at Sarnath. The pillar was primarily intended to commemorate the great wheel with 24 spikes. The 4 animals carved in relief in the abacus of the wheel. The elephant, horse, bull and lion symbolize the 4 quarters of the universe. The boldly designed, finely proportionate and well conceptualized architecture draw the admiration of the beholder and recall the first sermon by Lord Buddha at Sarnath. A group of 4 lions surmount the Sarnath capital, each facing the cardinal direction. The pose of their limbs and tense muscular anatomy speak of the imagination of an accomplished master craftsman. Their faces and flowing mans, the bold contour of their rounded figure, their subtle modeling in relief, manifest and unerring the and confident hand of master artist of the modern court. इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द नेशनल एम्बल फॉर। द नेशनल एम्बल, इसका भी आंसर हमें पैराग्राफ में ही मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड, और इसका आंसर है द नेशनल एम्बल इज
the symbol of peace and goodwill to the world? Second question, the national emblem is taken from the pillar of at Sarnath. ये true या false बताना है, तो ये true है. The national emblem recalls the first sermon by dash at Sarnath. इसका आंसर है Lord Buddha. Question number D. How many spokes are there in the great wheel of the pillar? A 7, B 10, third is 24 या फिर fourth is 100. और इसका आंसर है 24. Give the noun from the great form of great. Noun form of great. तो great का noun form क्या है? Greatness. Section B. Read the following passage carefully and answer the question given below. Success in your life depends largely on good health. Keep your body fit by cleanliness, fresh air, regular habits and suitable recreation. Make yourself strong to play the game and do it in every sense of word. Avoid anything that will sap your strength. Smoking in your youth stunt the body and cloud the brain. Be temperate in all things and beware of drinking. It is the deadly enemy of health and efficiency. Above all, remember that your character is a priceless possession. Therefore, keep it untarnished. Be truthful in all things, courteous and considerate to everybody, fair to your rival. Be kind and helpful to all who are weak and suffering, and do not be afraid to have the courage to stand up for what is good, poor and noble. Avoid gambling in any form. It is a mean game trying to get something for nothing at other people's expense. Fill such are with interesting hobbies, good books and with companionship and associations calculates to exercise over you and influence for good. To a large extent you will be known by the company you keep. इसके क्वेश्चन से give the passage careful and read the passage careful and make notes. इसके हमें नोट्स बनाने हैं. इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, इसमें हमें नोट्स बनाने हैं एक, और इसमें इसे एक सूटेबल टाइटल देना है. इसी पैराग्राफ्स में से हमें कुछ पॉइंट्स लेकर नोट्स बनाने हैं. मैं आपको बता देती हूँ. इसका आप नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए. फर्स्ट लाइन लिखिए, गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर सक्सेस इन लाइफ. सेकेंड लाइन लिखिए, अवॉइड एनीथिंग दैट अफेक्ट्स हेल्थ एंड एफिशिएंसी इन एन एडवर्स मैनर. थर्ड, be truthful, humble, considerate, fair, kind and cooperative. Fourth, cultivate some interesting hobbies to fill vacant hours. Fifth, seek good company. इसके लिए हमें एक सूटेबल टाइटल देना है. तो टाइटल मैं आपको बता दे रही हूँ, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर गिविंग योर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक. या फिर हम और में लिख सकते हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी. या फिर इसे आप अपने स्कूल में जो बताया गया है वो लिखिए. राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 200 वर्ड्स. ऑप्शन ए, इसमें आपको 4 ऑप्शन है, आप कोई भी एक लिख सकते हैं. माई हॉबी, अ क्रिकेट मैच, साइंस इन आवर डेली लाइफ, या फिर 4 एन इंडियन फेस्टिवल. इसमें से आप कोई भी आप एक लिख लीजिए, या फिर आप एक आर्टिकल भी बना सकते हैं. ये नहीं करना है अगर आपको, तो आप एक आर्टिकल भी बना सकते हैं यहाँ जो पॉइंट्स दिए हैं उसके बेसिस पे. क्वेश्चन नंबर 6, इस पर आपको एक पैराग्राफ दिया है. इसमें आपको एक पैराग्राफ बनाना है. ये जो पिक्चर दिया है, इसमें जो विजुअल दिया है, इसको देखकर, जैसे कि इसमें दिख रहा है कि एक पर्सन है जो सारे ही धर्मों को, सारे रिलीजन को हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है. तो इस पर आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें आपको विजुअल में जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आपको इसमें लिखना है. सेक्शन सी, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स एनी 5. इसे हमें 7 दिए हैं, एनी 5 करना है.
सोहन वॉज सो फुल ऑफ जॉय दैट ही डैश मी अ गिफ्ट। ये एक सेंटेंस है पास्ट टेंस का और इसमें वर्ब दी है प्रेजेंट टेंस की। तो हम इसमें वर्ब डालेंगे जो पास्ट टेंस की होगी। गिव का पास्ट टेंस होता है गेव, तो हम इसमें डालेंगे सोहन वॉज सो फुल ऑफ जॉय दैट ही गेव मी अ गिफ्ट। सेकेंड इज व्हेन ही रीच द बस स्टैंड द बस हैड ऑलरेडी लीव लिखा है यहाँ पर इस ये एक हैड लिखा है तो ये पास्ट टेंस का है, तो हम इसमें लेफ्ट रखेंगे। सेकेंड थर्ड, डैश इज गुड इन एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। फोर्थ इज डैश द न्यूज ही बिकेम प्लीज्ड, इसका आंसर आएगा हियरिंग द न्यूज ही बिकेम प्लीज्ड। Fifth is dash I am used to dash a glass of milk in the morning, इसका आंसर है taking, I am used to taking a glass of milk in the morning. Sixth is his eyes were swelling, and last one is Ravi is playing football. क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्ट एनी 5, इसमें आपको करना है 7 दिए हुए हैं। इसमें आपको सेंटेंसेस दिए हैं कुछ, इस सेंटेंसेस को आपको जो ब्रैकेट में दिया है उस हिसाब से बनाना है। दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, इसका मैं एक इंट्रोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है और मैं आपको बताती हूँ। डू दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, मतलब इसमें हमें क्वेश्चन बन जाए ऐसा बनाना है। सेकेंड इज आई डू माई होमवर्क एट नाइट, चेंज इंटू नेगेटिव, इसे हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। इसका नेगेटिव सेंटेंस है आई डू नॉट डू माई होमवर्क एट नाइट। थर्ड इज माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, मेक अ क्वेश्चन विथ वेयर, इसे हमें क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बनाना है। वेयर डिड माई फादर गो यस्टरडे, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है फर्स्ट क्वेश्चन में भी और थर्ड क्वेश्चन में भी कि आपको इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। नेक्स्ट इज इट इज़ रेनिंग, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, इट हैड रेन्ड, ठीक है। फिफ्थ, वेयर हैव वी वर्क डन आवर, रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ सेंटेंस, ये बहुत ईजी है, हमें इसका सिर्फ ये सारे वर्ड्स को रीअरेंज करना है और एक सेंटेंस बनाना है। वी हैव डन आवर वर्क, इट इज़ द आंसर। द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस, इसे कंबाइन विथ करना है, सो या सो और दैट से हमें इसे कंबाइन करना है सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस है इन्हें एक करना है। द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। सेवंथ क्वेश्चन है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एज, डू एज डायरेक्ट। चलो ये हो गया क्वेश्चन। सेक्शन डी पे जाते हैं, लेट्स मूव ऑन सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन एनी 6, ये हमें 8 दिए हैं, कोई भी 6 हमें सही ऑप्शन करने हैं। हु रीड द लेटर बाय लैंग को, ये क्वेश्चंस हमें ये सारे के सारे और चूज द करेक्ट वाले ऑप्शन से, ये जो भी क्वेश्चन है सेक्शन डी में आपको आपकी बुक से ही आएंगे, तो आपको बुक का सारा आना चाहिए। ऑप्शन ए हीज वाइफ, ऑप्शन बी द पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी हीज फ्रेंड या फिर ऑप्शन डी गॉड, और इसका सही जवाब है द पोस्ट मास्टर, बी। सेकेंड क्वेश्चन इज द लेसन हीज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट आ डैश, अ पायलट, बी पैरट, सी मदर या फिर डी सीगल, और इसका सही जवाब है सीगल, डी। हु लिव्ड इन बॉगिंस हाइट्स, ऑप्शन ए मैडी, ऑप्शन बी पैगी, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी वांडा, और इसका सही जवाब है वांडा, ऑप्शन डी। What is the sweet bread called in Goa which accompanies the marriage gift? Option A paddle, option B bowl, option B bolians, option D kabai, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी bowl। Which plantation is popular in Assam? Option A tree plantation, option B wheat plantation, option C coffee plantation या फिर ऑप्शन D rice plantation, और इसका सही जवाब है ऑप्शन A tea plantation। Sixth is Buddha means dash, ऑप्शन ए द ओल्ड, ऑप्शन बी द वाइज, ऑप्शन सी द एनलाइटेंड, ऑप्शन डी द एक्नॉलेजेबल, और इसका आंसर है ऑप्शन सी द एनलाइज्ड। सेवंथ, हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड,
ऑप्शन ए हर कैट, ऑप्शन बी हर डॉग, ऑप्शन सी हर डेयरी या फिर ऑप्शन डी हर फादर। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हर डायरी। 8th क्वेश्चन इज ऑन विच ट्री वॉज द क्रो सिटिंग। ऑप्शन ए बनियान ट्री, ऑप्शन बी हेमलॉक ट्री, ऑप्शन सी पीपल ट्री या फिर ऑप्शन डी मैंगो ट्री। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हेमलॉक ट्री। क्वेश्चन नंबर 10, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। ऑप्शन इसका हमें फिर से पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। इसके लिए भी आपको बुक पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी बुक का ही एक्सट्रैक्ट है। इसके क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द क्लास लाफ हार्टली, क्लास क्यों हंसी। Class laughed heartily because Annie was given the punishment to write an essay on the topic quack quack quack, said Mistress Chatterbox. Second is Annie did not like the idea of her friend. True or false? It is false because Annie liked the idea of his friend. C. Mr. Keesing punished Annie for option A being lazy, option B cheating, option C talking या फिर option D eating in the class। और इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड टॉकिंग। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स लाफेबल। और इसका जो वर्ड है रेडिकुलस। हु वॉज मिस्टर कीसिंग? मिस्टर कीसिंग वॉज एनीज मैथ टीचर। एनीज फ्रेंड डैश ऑफर्ड टू हेल्प हर राइट अ लेसन। और इसका आंसर है सैनी जो उसका फ्रेंड है। क्वेश्चन नंबर 11 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको एक आंसर देना है 30 वर्ड्स में और इसमें आपको और करके है क्वेश्चंस। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको एक नहीं आए तो आप और वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं इसके लिए भी, लेकिन आपको बुक के क्वेश्चंस आने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पोइट्री वाले भी आपको आने चाहिए। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं लेकिन और करके ये टोटल 4 हो जाते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल्सो लाइक दिस। इसमें भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको 4 में से कोई 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 14 इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 75 वर्ड्स में आपको इनका आंसर देना है। ये 3 नंबर के आएंगे। इसमें भी आपको वैसे ही है, 2 दिए हैं, 4 दिए हुए हैं, कोई 2 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्सो लाइक दिस, पर ये पोइट्री में से है तो इसमें से भी आपको 1 करना है। 2 में से 2 दिए हुए हैं, कोई 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 16 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी 3 नंबर के हैं और इसमें से आपको कोई 1 करना है, 2 दिए हुए हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये पेपर ख़त्म होता है। इसके लिए और इसी तरह से और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाइए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। और स्टडी मटेरियल्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके सारे आंसर्स भी आपको वहीं मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे लिंक को ओपन कीजिए और हमारे चैनल के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।